Dr. Naik. It's a great privilege to be in front of Dr. Nidhika Pandey of Kanpur, the eminent pediatrician. And she has done her studies and post-graduation in pediatrics from Mera Medical College. Dr. Nidhika Pandey is having a bright academic record. After that, she has came to Kanpur and served as assistant professor in the Kanpur Medical College. And today she is holding a lot of responsible posts in different associations related to the pediatric societies. And she has been delivering her responsibilities with flying colors, giving a lot of quality treatment to her patients and giving utmost care to them. So I thought, let me utilize this opportunity to get her views on the management of pediatric diarrhea. Ma'am, how do we approach basically for the treatment of pediatric diarrhea? See, diarrhea is a very common problem contributing to a lot of health issues in children from age of 4 to 5 months up to 10 to 12 years of age. बहुत common problem है and it happens just because of most common causes hygiene issues. There are 3 types of diarrhea. They could be bacterial, protozoal or bacterial, but most common is usually viral and bacterial diarrhea, and it happens because of fecal-oral route, putting something which is not healthy or which is not clean into your mouth, and this is the most common cause for diarrhea. One other common cause of diarrhea is cow milk protein. Cow milk protein allergy in children, the mother जो आप अपना मिल्क नहीं दे पा रही हैं या cow milk दे रही हैं तो उसकी वजह से आंतों में एलर्जी की वजह से उनको डायरिया होता है. That can also contain lot of blood. तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपको छोटे से लेके बड़े स्तर में देखने को मिलेगा. तो हमारा अप्रोच ये रहता है कि डायरिया में क्योंकि स्टूल लॉस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंसी बढ़ जा रही है स्टूल की, तो बच्चों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है डिहाइड्रेशन. सो हम ये असेस करते हैं कि जो डायरिया हो रहा है वो पहले बच्चे की कंडीशन से देखेंगे कि बैक्टीरियल है, कि वायरल है या प्रोटोजोअल है. क्योंकि ज़्यादा सिक होगा तो बैक्टीरियल होगा, सिक उतना नहीं है तो मोस्टली वायरल हो सकता है. फिर डिहाइड्रेशन कैसा है, थोड़ा है, ज़्यादा है या बहुत बच्चा सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, and according to the level of dehydration we further manage the children. So that is a basic approach to it. So you start with madam antibiotics? Ideally no. No. Ideally through the books or whatever treatment has been prescribed by our pediatric societies, you should not directly start with antibiotics because 90% of the diarrhea they can be treated without antibiotics. आप सबसे पहले तो हाइड्रेशन को रिफिल करिए. आपका बच्चा लग रहा है कि डिहाइड्रेटेड है तो आप ORS का घोल जो WHO सोसाइटी ने बनाया है उसको करेक्ट मेजर में बना के आप बच्चे का डिहाइड्रेशन करेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा वी कैन यूज जिंक. जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिंक आपकी गट लाइनिंग को हेल्प करता है. जिंक की वजह से आपका डायरिया कंट्रोल होता है. एंड देन थर्ड रोल इज ऑफ प्रोबायोटिक्स. तो आप प्रोबायोटिक्स का भी यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल डायरिया. कभी कभी आपका डायरिया एंटीबायोटिक ओवरडोज की वजह से भी हो जाता है, दैट वी कॉल एज एंटीबायोटिक एसोसिएटेड. सो इवन इन दैट वी कैन हैव यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स. So it means ma'am, wherever you feel there is a need of antibiotics, even along with antibiotics, you advocate the administration of probiotics. Yes, we do. Because it has been seen in the recent years that पहले नहीं इतना यूज था प्रोबायोटिक्स का, पर नाउ सिंस गट फ्लोरा इज बीइंग आई वुड से dismantled because of lot of eating habits and putting wrong things into the stomach, so now sometimes to make the जो dysbiosis हो रही है आपके गट में उसको करेक्ट करने के लिए कभी-कभी हमें माइक्रोबायोटा, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ऐड करना. बीच में एक आपका भी हमें जानना था कि बाजार में मार्केट में बहुत सारे जो है प्रोबायोटिक्स हैं सिंगल स्ट्रेन्स में हैं, कुछ लोग मल्टीपल स्ट्रेन्स में लेके आ रहे हैं और मैडम कुछ ड्राई फॉर्म में दे रहे हैं, कुछ सैशे में दे रहे हैं, कुछ सिरप में दे रहे हैं. तो मैडम आपका क्या अप्रोच होगा? वन सिंगल स्ट्रेन इज मोर यूजफुल और डू यू थिंक दैट 3-4 important probiotics can be given together, will they be more useful? आई थिंक सिंगल स्ट्रेन अब डिपेंड करता है कि आपके गट में प्रॉब्लम किस बैक्टीरिया को लिखी होगी. आई बिलीव सिंगल स्ट्रेन इज अ बेटर ऑप्शन एंड ओवरक्राउडिंग ऑफ गुड बैक्टीरिया इज आल्सो नॉट गुड. फिर आपने कॉम्पोजिशन के लिए कुछ मार्केट में प्लास्टिक की बोतल में इतने सारे प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं, बट वी डोंट नो दैट इन दैट टेम्परेचर विल द प्रोबायोटिक्स विल बी स्टेबल और नॉट. So I prefer dry form, which you can make it at home, is a better option. So, madam, if it is not a plastic bottle, if it is a glass bottle, and it is ready to use, it will be, madam, giving some. It is definitely at a better state. So, madam, for the patients, we have tried to brought out a ready-made solution, and instead of, madam, giving a lot of bacteria, at least 4-5 important bacteria like Bifidobacterium, then Bacillus clausii, Saccharomyces boulardii, and Cerevisiae, and Lactobacillus rhamnosus. These 3-4
we have given in such a way that they are in the spore form, so do not compete with each other, they don't have any negative effect on each other. और ये चारों पांचों मैडम मिला करके हम इस तरीके से दे रहे हैं कि पेशेंट को साथ में हमने अगर जिंक भी ऐड कर दिया है, मैडम आई फील दैट यू विल डेफिनेटली एनकरेज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. No, definitely it is a better combination. Adding zinc is definitely adding like that cherry on the top. Secondly, if your bottle is a glass bottle, hygiene, plastic से जो होने वाले issues हैं वो manage हो रहे हैं. Third, आप अगर स्पोर ऐसे दे रहे हो कि आपस में मिंगल नहीं हो रहे हैं, that is also one of the I would say positive point for that thing. Fourth, I would say that whatever bacteria जो नहीं मिले, lactobacillus rhamnosus या जो भी है, this is a major cause. Major cause. So you are covering basically the major culprits for causing diarrhea. So definitely, and because it is a pre-mixed bottle, so a lot of people who are not that well read, they have a difficulty in making composition until and unless we tell them. So if they are making on their own, so they will have a better pre-ready mix. So that will be. Because I have seen that even after a lot of instructions, agreed. They do not do it correctly. Especially example is ORS. आप ले लो और कितना भी समझा लो कि इस ऐसे से बनना है, वो गलत ही बनता है. कई बार तो निशान के ऊपर पानी, कई बार निशान के नीचे, तो कंसंट्रेशन वेरी जाती है. और अगर वाटर की क्वालिटी ठीक ना हो, वो भी contaminated हो. Yes, so then there is no point. There is no point. Instead of giving benefits, it may cause some harm. See, ideally mixing is a good option, but because इतनी compliance नहीं है patient की, वो बना नहीं पा रहे हैं या उन्हें नहीं, क्योंकि डायरिया अगर हो रहा है, अगर आपकी लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस में हो रहा है, जबकि हाइजीन अच्छी नहीं है, वो अगर वही पानी जो पी रहे हैं जिससे डायरिया हो रहा है, वही पानी उसमें मिला रहे हैं, there is no point. There is no point. Very correct. मैडम ये भी हो रहा है कि कुछ लोग जब बहुत सीवियर डायरिया होता है तो लोपेरामाइड का भी यूज करते हैं. It is a very bad practice. लोपेरामाइड में मैं शायद इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को बताना चाहूंगी, लोपेरामाइड शुड बी यूज्ड अंडर योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड अंडर वेरी सेलेक्टिव सर्कमस्टांसेस. बाहर से पीली गोली लेके खा लेने में आपकी पॉटी तो रुक जाएगी, आपका स्टूल तो रुक जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको इंटरसेप्शन, वॉल्बिलस, आंतों में चढ़ना, ब्लडी डिसेंट्री बहुत कॉमन है बच्चों में, और डायरिया से ज्यादा वो किसी और वजह से फिर एडमिट हो जाते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. आपने मैडम अपने इतना जो इनसाइट्स हम लोगों को दिया है, ये हमारे को और फर्दर मैडम चीजों को अच्छा करने में हेल्प करेगा. और मैडम आपका जो ये व्यूज होंगे हम सोसाइटी में और जगह पे भी शेयर करेंगे ताकि लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, और इसको अच्छे ग्रुप्स में डालेंगे जहाँ डॉक्टर्स और भी जुड़े हुए हैं. और आई एम श्योर मैडम आपके व्यूज से बाकी लोगों को भी फायदा होगा. और हमने मैडम इस जो प्रोडक्ट अपना इजी बैग सस्पेंशन बनाया है वो एज पर द गाइडलाइंस बनाया है कि हम 60% उसमें जो बैक्टीरिया दे रहे हैं वो लैक्टोबैसिलस स्पेसीज से कर रहे हैं, बिकॉज हमारे गट का कॉम्पोजिशन में 60% लैक्टोबैसिलस, 20% में मैडम हम बैसिलस क्लोजी के अलावा दूसरी चीजें दे रहे हैं और 20% थर्ड टाइप के दे रहे हैं. तो एक बैलेंस मिक्स दे रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस भी मिल जाए, बिफिडोबैक्टीरियम भी प्रॉपर रेशियो में मिले, और साथ में जिंक होने से ये पेशेंट के लिए एडिक्वेट. Thank you, madam, for your advice. Your views are most welcome. Thank you very much.